नमस्कार, वेलकम, वनकम। मैं अंकुश गुप्ता, आपका अपना द मोटिवेशनल स्पीकर, आपका स्वागत करता हूं। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरा इन दिनों जो यूट्यूब से बाहर था मैं, उसका रीज़न था और वो रीज़न मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बेस लेवल से की, एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, और आज वो क्लस्टर हेड होते हुए एक फील्ड फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हेड बन चुके हैं, डॉक्टर रेड्डी जी इंडिया के। आइए हम बात करते हैं मिस्टर आशीष निगम जी से कि उन्होंने इस लेवल तक पहुंचने के लिए किन कठिनाइयों का सामना किया और कौन कौन से अचीवमेंट्स उन्होंने पाए हैं। ओवर टू मिस्टर आशीष निगम जी। हेलो सर, हाउ आर यू सर? आई एम गुड, आई एम ग्रेट। सर कैन यू प्लीज हमारे ऑडियंस को आप बताना चाहेंगे कि आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे की थी सर? आप एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप फार्मा कंपनी में कब आए थे? इन विच सन सर? So Ankush, it's a long journey. I started as a young graduate in the year 1988 from the holy city Varanasi. Oh. And those days I remember getting into pharma profession was all about your ability to speak fluently in English. Oh. And fortunately I was good at communication, and hence I got breakthrough in this pharma selling world. Oh, so just want to understand, like, first of all, sir, wanted to ask one question. How are you and your family are doing in this pandemic time, sir? So I think when you say how are we doing, I think grace of God, we could protect ourselves during this pandemic time by following all the disciplines of social distancing, washing your hands regularly, but more than that, I think apart from protecting ourselves, I think we had a larger responsibility of protecting people around us, the teams, the larger team for which I as a leader was responsible. And I think I derive a lot of satisfaction because as an organization we created a COVID task force, and I was also part of that. So not only that I was able to, grace of God, take care of my family, their protection, but also the larger field force for which I was made responsible with the help of a larger team with us, whether it was medical doctors, whether it was HR team. So a lot of people actually helped us to protect our team, protect their families during those tough times. That's great, sir. Nice to hear that you have done lots of work, sir. So just wanted to understand from your side, like, tell us about you and your career, how you started your career. As you told, you are starting from Varanasi. So like from Banaras to Hyderabad, how is the journey? So Ankush, I think pharma profession and growth within pharma, जैसा आपको मालूम, it is all about your ability to learn, your ability to perform, and hence you are recognized based on your learnings, the capability जो आप बनाते हो इस जर्नी में, और जो अचीवमेंट आप करते हो। ऑर्गेनाइजेशंस आपको इन तीन चीज़ के लिए रिकग्नाइज करती है। तो आई थिंक मैं फॉर्चुनेट था कि जब मैंने करियर में स्टार्ट किया तो मुझे अच्छे लीडर्स मिले, अच्छे सीनियर्स मिले, जिन्होंने मेरे लिए टाइम इन्वेस्ट किया, मेरे को ग्रूम किया, गाइड किया। और ये बात सही है कि मेरे अंदर वो एनर्जी, पैशन और कमिटमेंट था कि जो भी वो मुझे सब कहते थे इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसको मैं प्रैक्टिस करता था, कमिटेड रहता था, सिंसियर रहता था, और एज अ फॉलो आउट ऑफ दैट परफॉर्मेंस होती थी। और चूँकि परफॉर्मेंस होती थी तो पीरियोडिक वे में प्रमोशंस होते रहे, फ्रॉम मेडिकल रेप टू एरिया मैनेजर, देन टू रीजनल मैनेजर, then sales manager of a very large geography, then associate director sales, wherein I was responsible for east zone as well as half north zone, and subsequently I was elevated as a national sales manager for one of the largest businesses for Dr. Reddy's India business. Later on I was promoted as a division head responsible for both marketing and sales.
eventually cluster head. And during this pandemic time, कंपनी को ऐसा लगा कि शायद फार्मा प्रोफेशन में काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज होगा. सो रिक्वायरमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन की, नॉट ओनली फॉर द फील्ड फोर्स, ऑल्सो फॉर द पीपल एट अ लीडरशिप लेवल. और एक डिफरेंट कैपेबिलिटी लगेगी, चाहे वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो, कस्टमर्स को रीच आउट करने की बात हो, कस्टमर्स को डिफरेंटली इंगेज करने की बात हो, हमारी मेडिसिन्स को पेशेंट्स तक फ्लुएंटली पहुंचाने की बात हो. तो ये सारा कुछ इकोसिस्टम काफ़ी चेंज हो रहा था, और ये सबको स्मूथली एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को लगा कि हमारे पास एक ऐसा पोजीशन होना चाहिए, एक ऐसा लीडर होना चाहिए जो पूरी फील्ड फोर्स को नए तरीके से, जो फार्मा इंडस्ट्री की नई रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए अलाइन कर सके, ट्रेन कर सके, ट्रांसफॉर्म कर सके और उनकी हेल्प कर सके टू डू द बिजनेस एंड बिजनेस रिलेटेड डे टू डे एग्जीक्यूशन वर्क इफेक्टिवली. That's great achievement, sir. For congratulations from my side for this kind of achievement, because सभी लोग बेस से शुरुआत करते हैं. कुछ लोग बेस पे ही रह जाते हैं बिकॉज वो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, और कुछ लोग कंफर्ट जोन को क्रॉस करके ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं, और जो कोशिश करते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं. सर आपसे ज़्यादा शायद मैं इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन सर आपने वो अचीव किया और यहाँ तक पहुँचे हैं सर. सर जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, सर हाउ मेनी लीडर्स यू हैव क्रिएटेड इन योर कैरियर एंड सर हाउ दे आर डूइंग राइट नाउ. तो अंकुश, आई थिंक जब आप बोलते हो कि कितने लीडर क्रिएट किए तो मुश्किल है काउंट करना. आई थिंक 100 के बाद शायद मैंने काउंट नहीं किया होगा. बट इट इज़ नॉट अबाउट क्रिएटिंग और हेल्पिंग लीडर्स टू ग्रो, बिकॉज लोग ग्रो तो अपनी एबिलिटी और अपनी कमिटमेंट पे करते हैं. आप केवल उनको राइट एनवायरनमेंट देते हो, आप उनके साथ टाइम इन्वेस्ट करते हो और उनकी हेल्प करते हो ये फिगर आउट करने में कि उनके स्ट्रेंथ एरियाज़ क्या हैं, वो किस फार्मा डोमेन में भी बहुत से एरियाज़ हैं, वो किस एरिया में जाना चाहते हैं. बहुत से लोग सेल्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत से लोग मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, बहुत से लोग एचआर में जाना चाहते हैं, बहुत से लोग सप्लाई चेन में जाना चाहते हैं. तो फार्मा ग्रोथ इज़ नॉट ऑल अबाउट वर्टिकल ग्रोथ इन सेल्स. there are various avenues, there are various departments, and I'm glad to share with you कि मेरी टीम में और मेरे साथ जिन लोगों ने काम किया है या मैंने उनके साथ काम किया है, आज वो केवल सेल्स में ही लीडरशिप पोजीशन पे नहीं है, वो इन सारे एरियाज़ में जो मैंने आपको बात की कहीं ना कहीं सीनियर पोजीशन पे काम कर रहे हैं. सर स्टिल दे आर connected with you? Yeah, I don't know if LinkedIn connection is a criteria or these days we use social media. I can proudly say that more than 3,000 to 5,000 people are connected at various platform with me, and most of them are somewhere or the other or some point of the other part of my team. That's great sir, great to hear that वो लीडर्स भी आपको याद करते होंगे, और ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज उनको मिलते होंगे जब वो बोलते होंगे कि हमारे गुरु मिस्टर आशीष निगम जी थे वो टाइम पे. Also sir, how does the coronavirus pandemic affect your personal and professional life, sir? If you can throw some light on this. आई थिंक काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड टाइम था अंकुश. सर आप जानते हैं कि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. टोटली लोग ऑनलाइन पे आके शिफ्ट हो गए थे, और ऑनलाइन किसी को एक्सेप्ट हो रहा था, किसी को नहीं एक्सेप्ट हो रहा था. लोग समझ नहीं रहे थे कि मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है. बहुत लोगों ने छोड़ दिया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया. और एज यू नो कि अगर हम ऑनलाइन हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपकी सारी बातें उन तक पहुँचे और उनकी सारी बातें आप तक पहुँचे. देयर वुड बी सम कम्युनिकेशन गैप और समथिंग लाइक दैट. सर हाउ यू ओवरकम इट? तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. सो ये बात सही है कि ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड टाइम था. पैंडेमिक टाइम वाज अनप्रेसिडेंटेड, और ये वो टाइम था जब शायद सभी ने, इंक्लूडिंग मी, हम सब ने रिफ्लेक्ट बैक किया होगा कि हमने आज तक क्या किया पर्सनली, प्रोफेशनली, एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी हर ऑर्गेनाइजेशन ने रिवाइंड किया, रीइमेजिन किया और देखा कि अगर ये सिचुएशन ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी तो हमको अपने प्रोफेशन को, अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है.
और एज यू राइटली सेड कि हमारे बिजनेस में इट इज़ ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद कस्टमर्स एंड डिजिटल वे ऑफ कनेक्टिंग कस्टमर वॉज अ न्यू थिंग. टीम्स भी कंफर्टेबल नहीं थी, डॉक्टर्स कस्टमर्स भी कंफर्टेबल नहीं थे, तो उनको ओरिएंट करना, उनको ट्रेन करना, गाइड करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था. और वेरी हैप्पी टू शेयर दैट with the help of training team, with the help of HR team, and definitely credit to the teams which were open to learn new capabilities, learn the way they were used to connect customers during this pandemic time. तो काफ़ी कुछ चीज़ें बदली और आई थिंक ये बात सही है कि केवल डिजिटल आप सस्टेन नहीं कर सकते और केवल कंप्लीट फिजिकल आप वापस जा नहीं सकते. तो फिजिकल वाज अ न्यू रियलिटी, दैट वाज अ न्यू नॉर्मल, आई विल से. एंड आई थिंक एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एंड एज अ फंक्शन ऑल्सो, आई थिंक वी हैव अ लॉट टू कंट्रीब्यूट एंड वी आर ऑन द राइट ट्रैक. इंडस्ट्री भी, केवल डॉक्टर रेड्डीज या हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, पूरी इंडस्ट्री ने फिजिकल वे ऑफ कनेक्शन और फिजिकल वे ऑफ रीचिंग आउट कस्टमर्स को नया नॉर्मल मान लिया है. गुड टू हियर सर, आफ्टर ऑल दिस ऑब्स्टैकल्स यू ओवरकम टू योर बिजनेस. और शायद उस समय सर बिजनेस ग्रो भी हुआ होगा या फिर डिग्रो हुआ था? नहीं, बिजनेस तो बहुत अच्छा था. यू हैव शेयर्ड अ बिग नॉलेज विद अस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, कैसे लोग ग्रो हुए, कैसे आगे बढ़े, इवन आपने भी चैलेंज फेस करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं. आप सबसे बड़ी चीज़ है कि सर लोगों ने और आपने, पूरी कंपनी, पूरी इंडस्ट्री ने सर चैलेंज को एक्सेप्ट किया. करेक्ट. So what was your biggest challenge that you had overcome in your life that made you who you are today? देखो अंकुश, चैलेंजेस की जब मैं बात करता हूँ तो जब भी कोई नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपके करियर में आती है तो वो हर समय अपनी शेयर ऑफ चैलेंजेस लेके आती है. और इंडिया स्पेशली, हमारा जो कंट्री है बहुत डाइवर्स है, अलग अलग कल्चर हैं, लोगों के अलग अलग बैकग्राउंड्स हैं, स्टेट टू स्टेट लोगों का ओरिएंटेशन भी डिफ़र करता है. तो आपको उस स्टेट, उन लोगों के साथ जिनके साथ आपको ऑपरेट करना है वो समझना है और उसके बेसिस पे आपको अपना चैलेंजेस को ओवरकम करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं नॉर्थ में था और वहाँ से जब मैं ईस्ट में गया तो एक नया एनवायरनमेंट था, लोगों के नए माइंडसेट थे, उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ थी जो कि हो सकता है मेरी पहले की सोच और पहले की जो मेरी समझदारी थी उससे मैच नहीं करती थी. बट एज ए लीडर जब आप इन्वायरमेंट को समझने की, लोकल कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद अपने कस्टमाइज सॉल्यूशंस को जनरेट करते हैं तो आपको सक्सेस मिलती है. तो मेरा जो तरीका है चैलेंजेस को ओवरकम करने का वो है कि यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द लोकल पीपल, देयर माइंडसेट, लोकल कल्चर, generate very customized solution, take people along with you and then help them to achieve what they want. and उनका जो ऑब्जेक्टिव है, लाइफ का गोल्स हैं, करियर के गोल्स हैं, उसको कहीं ना कहीं आपको ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ जब आप अलाइन करते हो और लोगों को मोटिवेट करते हो, उनको अपने साथ लेते हो, तो जर्नी काफ़ी स्मूथ और फ्रूटफुल हो जाती है और रिजल्ट्स तो डेफिनेटली आते हैं, ऐसा मेरा कन्विक्शन है. सर कुछ लैंग्वेज बैरियर कभी आया होगा अगर आप नॉर्थ से ईस्ट में शिफ्ट हुए थे? बिकॉज लैंग्वेज बैरियर कहीं कहीं पे इशू होता है, ये मेरा मानना है. एंड माइट बी यू हैव ओवरकम विद दैट चैलेंज सर. फॉर्चुनेटली मेरे लिए लैंग्वेज बैरियर नहीं था. अच्छा. क्योंकि मेरे अर्लियर पार्ट ऑफ द करियर में जब मैं पहली बार मैनेजर बना तो मैं झारखंड में, जो तब झारखंड नहीं था, तब बिहार का पार्ट हुआ करता था, रांची, वहाँ पर जब मैं एरिया मैनेजर बना तो फॉर्चुनेटली मैं एक बंगाली फैमिली के साथ रहता था एंड आई कुड पिक अप बांग्ला. एंड देयरफॉर जब मैं ईस्ट में गया तो मेरे लिए वो लैंग्वेज सरप्राइज नहीं थी, बट डेफिनेटली इट इज़ एन एडिशनल. इफ यू नो द लैंग्वेज इट बिकम्स easy for you to understand people
and work along with them. तो आपके साथ बढ़ते बढ़ते गॉड ने भी आपकी कहीं ना कहीं हेल्प की है कि आप Surely. तथास्तु बोलते हैं हम. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट्स सर. तो जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड लाइक आपको कितने साल लगे मेडिकल रेप से मैनेजर बनने में? बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल से मेडिकल रेप हैं, या फिर बहुत लोग हैं 2 साल में आगे बढ़ जाते हैं. कुछ लोगों का कन्विक्शन नहीं होता, कुछ लोग बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती बिकॉज नाउ इज कॉम्पिटिशन्स आर वेरी ह्यूज. So sir, how much time you took to reach at this head, like manager to medical rep to manager, manager to RSM, RSM to ZSM to division head, sir? सो आई थिंक बाकी सारे प्रमोशंस पीरियोडिक थे. पहला ब्रेक थ्रू होता है आपका जब आप मेडिकल रेप से, जहाँ पर आप इंडिविजुअली अपने को मैनेज करते हो, एंड फ्रॉम देयर यू बिकम मैनेजर और सुपरवाइज़र टू मैनेज अदर्स. और वो काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज होता है एक आदमी की लाइफ में. और जिस समय मैं इस प्रोफेशन में आया, मैं भी सुना करता था कि कम से कम आपको 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजर बनने के लिए. लेकिन आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव वेरी गुड लीडर एज माई बॉस. आई कैन ऑलवेज टेक प्राउडली हिज नेम, मिस्टर संजीव त्रिवेदी, who is a big consultant now. And he, I think, motivated me, guided me, groomed me. And day one, he gave me a vision, an objective, that if you invest in your development of the skills, both softer skills and harder skills, on each day basis, you can reach to next level sooner. And happy to share with you that my first promotion happens in less than 3 years. Wow. It was 2 years 10 months when I was elevated as a area manager. That's great, sir. Even the clapping models there for the day, sir. Thank you for sharing your thoughts, sir, for this way also. So just want to understand, like, what are the biggest lessons that you learned in your life when you elevated from manager to from medical rep to area manager? अब देखो, लेसन्स तो अंकुश हमें हर दिन और हर लेवल पे सीखने हैं. बट ये जो लाइफ का मेरा अपना जो पहला लेसन है वो ये था कि हर आदमी को अपना इकिगाई खोजना पड़ता है. इकिगाई इसका मतलब कैसे? और इकिगाई का मतलब है कि वो चीज़ जिसकी वजह से मैं सुबह उठता हूँ और काम पे जाता हूँ. सो समथिंग विच मोटिवेट्स मी विद लॉट ऑफ पैशन. मतलब हर दिन कुछ नया करना है. हर दिन कुछ नया करना नहीं है, जिसकी वजह से मैं सुबह उठूँ और काम पे जाऊँ. मोटिवेशन. और वो वही चीज़ होती है जो आपको फोर्स करती है, मोटिवेट करती है ऑन डे टू डे बेसिस. तो एक तो ये है कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो हाउ पैशनेट आई एम अबाउट इट, एंड विच इज़ वॉट आई से वॉट इज़ माई इकिगाई. दूसरी चीज़ ये है कि जब आप लीडरशिप पोजीशन पे आते हैं तो आपको अपने को लीड करना होता है और दूसरे की हेल्प करनी होती है. तो ये जो जर्नी होती है मी टू वी, दिस जर्नी ऑफ मी टू वी इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. एंड आप कितने सेल्फ डिसिप्लिन हो, आप कितने ऑथेंटिक हो, कितना वॉक द टॉक करते हो, लोगों को समझने की कितनी कोशिश करते हो, और अपनी टीम के मेंबर्स के साथ कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो. और इन सारी चीज़ों को मैं कभी कभी बहुत शॉर्ट फॉर्म में भी बोलता हूँ कि एज अ लीडर यू हैव टू लव योर टीम. इफ़ यू लव देम यू कैन लीड देम. love your team, groom your team, sir. Yeah, so if you love your team you can lead them well. If you can't love them you can't lead them well. सर आपकी एक बात बड़ी बड़ी याद आती है कभी कभार कि सर अगर मैं मैनेजर हूँ, यू लव मी और यू हेट मी, यू कांट अवॉइड मी. वो जो लेसन है वो मेरे माइंड में छपा हुआ है सर. वो अच्छा भी लगता है कि अगर आपको काम करवाना है, कभी कभार आपको हार्श डिसीजन लेने पड़ते हैं. कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता है. तो जो वर्ड है यू लव मी और यू हेट मी बट यू कांट अवॉइड मी, दैट इज कुछ स्पेशल वर्ड्स मेरे लगता है मुझे. सो अंकुश, आई थिंक ये हर आदमी की कुछ अपनी पर्सनल वैल्यूज़ होती हैं, वर्क एथिक्स होती हैं.
मैं हर समय मानता रहा हूँ कि आपको इंडिविजुअल के साथ काम करना चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल के एक्शंस पे सारे डिसीजंस लेने चाहिए, इंडिविजुअल पे डिसीजन नहीं लेने चाहिए। इंडिविजुअल के एक्शन पे लेना है, इंडिविजुअल्स पे नहीं लेना है। तो जब आप इंडिविजुअल के एक्शन पे या डिसीजन लेते हो या उसकी तरफ काम करते हो, टाइम इन्वेस्ट करते हो, और क्या एक्चुअल वो इंसान है इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हो, तो डेफिनेटली जो आप कहते थे, जो आपने कहा कि यू लव मी और हेट मी, यू कांट अवॉइड मी, कई बार ये बातें लोगों को तब समझ में आती हैं जब वो आपके साथ होते हैं और आगे बढ़ते हैं, बट कई बार लोगों को तब भी समझ में आती हैं जब आपके साथ नहीं होते हैं। और इसीलिए शायद बहुत से लोग ऐसे हैं जो जब मेरी टीम में नहीं होते हैं तो वो वापस कई बार कनेक्ट करते हैं। That's great, sir. Thank you sir, लाइक ये जो एक वर्ड मिला है हमें, यू लव मी और यू हेट मी बट यू कांट अवॉइड मी, लगता है बाकी हमारे जो मैनेजर्स हैं अगर वो वीडियो देखेंगे तो शायद ये वर्ड उनके माइंड में समझ में आएगा कि ये भी चीज़ें हैं कि हम किस तरह से अपनी टीम से काम करवा सकते हैं। सर स्पेशली सर आपने जो वर्ड यूज़ किया, यू हैव टू लव योर टीम, दिस मैसेज इज फॉर ऑल द लीडर्स, यू हैव टू लव योर टीम, देन ओनली द टीम विल लव यू एंड दे विल वर्क फॉर यू, राइट सर? So just wanted to understand from you, like sir, what is unique about your approach towards your professional life, sir? So the junior colleagues can learn from you, sir. तो अंकुश, जब आप यूनिक अप्रोच की बात करते हो तो आई थिंक मेरे लिए सेल्फ डिसिप्लिन, इसको मैंने बहुत इम्पोर्टेंस दी। बीइंग ट्रांसपेरेंट, बीइंग ऑथेंटिक, वॉक द टॉक, let your actions do the talking instead of you talking about Action can let your actions, whatever you do. And दूसरा क्या, बहुत बार एज ए लीडर हम ओवर एनालाइज करते हैं चीज़ों को। मुझे ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में, आज के समय में जो यूनिक डिफरेंशिएटर है वो आपकी एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस एबिलिटी है। तो ओवर एनालाइज ना करके हमको एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस की तरफ जाना चाहिए। और कई बार रास्ते में व्हेन यू एग्जीक्यूट द थिंग्स यू फिगर आउट द बॉटलनेक्स एंड द पॉसिबल सॉल्यूशंस। वाओ। तो आई थिंक ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोग फॉलो करें तो दे टेंड टुवर्ड्स गेटिंग रिजल्ट्स, व्हिच इज rightly said, sir. Like you also agreed, Steve Jobs sir has told you can't connect the dots by looking backwards. Correct. So always you have to come forward to connect the dots, sir. करेक्ट। Sir, this question must be sounding you funny, थोड़ा हंसने लायक होगा, बट सर एक छोटा सा क्वेश्चन माइंड में से उभर के आता है। सर, इफ यू हैव अ सुपर मेगाफोन, okay, that when you speak into the whole world will hear you, what message and what do you say, sir? What message you want to deliver in that megaphone, sir? क्या बोलना चाहेंगे आप? तो डेफिनेटली इसका कुछ शॉर्ट आंसर हो सकता है, लेकिन मैं ऐसी चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि कई बार स्पेशली वो लोग जो छोटे शहरों से निकल के आते हैं और अपना करियर बनाते हैं, मैंने देखा है कि वो अपने बैकग्राउंड की तरफ थोड़ा शाई फील करते हैं। वो जो कल्चर जिससे वो आए हैं, हेरिटेज जो उनकी है, मेरा ऐसा अपना मानना है कि वन शुड नॉट शाई ऑफ हिज बैकग्राउंड, culture and the heritage. Rather, once you start growing in your career, you should use it as a stepping stone, as a foundation, as a building block to achieve your life and career goals. Wow, sir. That's what I feel. Great message, sir. Great message. Okay. Sir, आप कोई specific tool use करते हैं to be efficient with your colleagues and to be efficient with yourself? आई थिंक ये इसका जवाब शायद मैंने थोड़ा आपके पहले के क्वेश्चंस में भी दिया है। कोई स्पेसिफिक टूल ना यूज़ करके आई थिंक ट्राई टू बी ट्रांसपेरेंट, ट्राई टू बी डिसिप्लिन, ट्राई टू बी ऑथेंटिक विद योर पीपल। मेरे ख्याल से शायद रिपीटेशन है, बट यही वो चीज़ें हैं जो सुनने में तो बड़ी इजी लगती हैं, बट जब आप इनको प्रैक्टिस करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, नॉट ऑन 1 day or 2 day basis, you make it as a part of your work ethics. Wow. You make it part of your professional day to day life. It's not very easy,
it is easy, not so easy. राइटली सेट सर, राइटली सेट सर. सर एक छोटा सा क्वेश्चन था, लाइक बहुत सारे क्वेश्चन मेडिकल लैब्स के मन में आता है. नाउ डेज इट हैज़ बीन बिकम अ प्रैक्टिस, ओके, एंड पीपल आर स्कैर्ड अबाउट दिस प्रोफेशन को ज्वाइन करने में थोड़ा स्कैर करते हैं कि क्या है ये. बट सर लाइक एज यू नो, फार्मा इंडस्ट्री एंड अप विथ सेल्स, और सर सेल्स पीपल हैव अ टारगेट, दे हैव टू अचीव दैट टारगेट, ओके, बिकॉज उनके ऊपर इस तरह से मैनेजमेंट डिसाइड किया गया कि आपको टारगेट दिया गया है. सेल्स का मतलब ये सर टारगेट होना और टारगेट अचीव करना. Correct. एंड नाउ डेज सर क्लोजिंग इज द बिगेस्ट चैलेंज एंड फियर बिटवीन द junior colleagues, sir. So how come they manage this and how can become a closing smooth, sir? How can they do? So मेरे लिए अंकुश इसके दो पार्ट हैं. इसके एक पार्ट के लिए उनके बॉसेस और उनके लीडर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, और दूसरे पार्ट के लिए मेडिकल रेप खुद रिस्पॉन्सिबल है. तो मैं पहले उस पार्ट की बात करूंगा जिसके लिए उनके बॉसेस रिस्पॉन्सिबल हैं. उनके बॉसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर टीम की, हर बिजनेस की एक स्ट्रैटेजी होती है और एग्जीक्यूशन एक्सपेक्टेशन होती है. तो उनके लीडर्स की जिम्मेदारी है कि जो स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई गई है उसको कैसे वो उनको अलाइन करे, टीम्स को अलाइन करें, गाइड करें, ट्रेन करें और सिंप्लीफाइड तरीके से उनको बताएं, चाहे वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो या इंसेंटिव प्लान हो. वो ऐसे बताएं कि उसको कहीं नोट ना करना पड़े, उसका दिमाग में वो आ जाए, छप जाए. तो जब वो स्ट्रैटेजी और इंसेंटिव प्लान मेडिकल रेप के दिमाग में रहता है तो वो एग्जीक्यूट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. और जो उसका दूसरा पार्ट है वो है मेडिकल रेप से रिलेटेड. मेडिकल रेप से रिलेटेड जो पार्ट है वो ऐसा मेरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी है और इतने सालों का एक्सपीरियंस भी है कि हम अपने टारगेट को, मंथली टारगेट को, जितने हमारे पास मंथ में वर्किंग डे होते हैं उसमें एफर्ट और आउटकम में बांट सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा हर समय फार्मूला रहा है कि अगर मैं अपने मंथली कवरेज का 4% रोज़ करूँगा तो मेरा 4% रिजल्ट आएगा. दैट 4% रोज करूँगा तो 4% का रिजल्ट आने के चांसेस ज़्यादा है. करेक्ट. या हो सकता है. तो जब मैं अपनी अगर 4% कवरेज एंड 4% आउटकम ये इस पे फोकस करूँगा तो मुझे जो मंथ एंड की जो ब्लूज़ हैं, वरीज़ हैं, और कई बार वो नॉन कंप्लायंट, अनइथिकल वेज की तरफ भी जाती हैं, उन सब को हम अवॉइड कर सकते हैं. बट ये वही वाला एग्जाम्पल है कि एक बच्चा जो साल भर पढ़ता है और एक बच्चा जो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पढ़ना चाहता है. तो मेरे हिसाब से जो मेडिकल रेप्स एवरी डे, अगर महीने में एवरेज सपोज हम बोलते हैं कि 23 वर्किंग डे हैं, सारे 23 वर्किंग डे में जब वो अपनी डे प्लानिंग को कस्टमर लेवल पे सही से एग्जीक्यूट करता है तो उसको जो डे के रिजल्ट्स हैं, जो मैंने बोला 4% रिजल्ट और 4% एफर्ट्स, ये मेरे हिसाब से, मेरा अपना एक कन्विक्शन है कि ये आते हैं. और मैंने मैथमेटिकली भी देखा है कि जो लोग ये करते हैं उनको सेल्स क्लोजिंग के बारे में ज़्यादा बॉदर नहीं करना पड़ता. वाओ सर, एज सर सेज कि 4% एफर्ट्स इज इक्वल टू 4% रिजल्ट इन अ डेली बेसिस. आप डेली बेसिस पे अगर अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, 4% भी इम्प्रूव करते हैं तो आपका रिजल्ट आएगा. और सर ने ये किसी बेसिस पे ही कहा है बिकॉज ही हैज़ अराउंड 35 to 40 years of experience, sir? No, I have almost 30 years of experience. So finally, sir, just want to end up this interview, sir. Sir, what is your final thoughts about this industry and for the leaders who are watching this video, for medical reps who are watching this video? तो अंकुश, एक्चुअली मेरे हिसाब से जब टाइम मैंने ये प्रोफेशन स्टार्ट किया था वर्सेस राइट नाउ, अकॉर्डिंग टू मी देयर्स अ गोल्डन टाइम ऑफ फार्मा इंडस्ट्री, बिकॉज थैंक्स टू दिस पेंडेमिक आवर इंडस्ट्री इज एक्चुअली इवॉल्विंग from just selling medicine to providing a complete healthcare solution. And I think the effective use of digital platforms is also now getting introduced. Even wellness as a solution is also now part of a healthcare solutions. Requirement लोगों से ये है कि people should be open to learn, adopt new technology, especially digital, learn new capabilities,
एंड जब ये लोग हम ये सब करेंगे तो डेफिनेटली स्कोप टू ग्रो and expand our career beyond what we are doing is very high. सर एज यू नो हमारे इंडिया में कहा जाता है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। सर आपके पीछे भी शायद आपके माता पिता, आपकी वाइफ, आपके बच्चे जिन्होंने आपको पैंडेमिक में सपोर्ट किया और आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं सर उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? So Ankush, yes, I think I'm fortunate that both my parents have been working parents. I have learned a lot of things. Whatever is my values is what I got from them. My father was director of finance in government of UP. My mother was a principal in a girls' college. I have 2 younger brothers, 1 elder sister, who is US citizen. And post one professional life, once I got married, my wife is doctorate in philosophy. Wow, that's great. Yeah, and I think it is her unconditional support, because I have traveled across country as a part of my career and professional journey. I think it is her sacrifice and unconditional support which helped me to focus on my profession. I have 2 daughters. The elder one is working in US, and the younger one just completed her law. That's all about me. So thank you very much sir for giving your thoughts for this interview. Might be all leaders and the people who are watching this video, they can get some knowledge. उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नॉलेज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं और इसको में कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये मिस्टर आशीष निगम जी, हु इज अ लीडर, जिन्होंने अपने करियर में बहुत सारे लीडर्स बनाए हैं और बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया है। तो हम फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में with some new leader, and he is going to give some new knowledge and new benefits to you all. Thank you very much. See you soon. फिर मिलेंगे।